So we were going through 2 Peter chapter 3. हम जो है दूसरा पत्रस का तीसरा अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं. So in chapter 1 it is referring to cultivation of chapter 1 of 2 Peter. It is referring to cultivation of Christian character. और दूसरा पत्रस का पहला अध्याय जो है एक मसीही जो चाल चलन है वो कैसे हम चल सकते हैं उसके बारे में बताता है. In chapter 2 it is describing about false teachers, false prophets. और दूसरा अध्याय में जो झूठे भविष्यद्वक्ता और झूठे उपदेशक हैं उनके बारे में समझाया है. And in chapter 3 Peter is telling about the second coming of the Lord Jesus Christ. और तीसरे अध्याय में पत्रस जो है प्रभु यीशु का जो दूसरा आगमन है उसके बारे में बताते हैं. So we saw last time in the first 7 verses of chapter 3, Peter is telling about mockers who are mocking about the second coming of the Lord. और तीसरे अध्याय के 7वें वचन तक हम देखते हैं कि पत्रस ऐसे लोगों के बारे में बता रहे हैं जो प्रभु के दूसरे आगमन के बारे में ठट्ठा उड़ाते हैं. And Peter is giving the reply also to the mockers. और ऐसे लोगों को जो है पत्रस अपना उत्तर भी देता है. In verse 8 to 10 he is telling about some other matters concerning second coming of the Lord. और 8 से लेकर 10 तक जो है और कुछ ऐसी बातें जो आगमन प्रभु के आगमन के बारे में वो बताते हैं. And verse 11 onwards is telling how we are to prepare for the second coming of the Lord. और 11वें वचन से वो हमें अपने आप को कैसे तैयार करना है प्रभु के आगमन के लिए उसके बारे में बताते हैं. So we can see verse 10 to we can start from verse 10. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with a great noise, and the elements will melt with fervent heat. Both the earth and the works that are in it will be burned up. और 10वां वचन तीसरे अध्याय का, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा. उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे. So the day of the Lord is a term that describes the end time events. और परमेश्वर या प्रभु का दिन वो जो है अंत के दिनों में जो घटनाएं होंगी उसको दर्शाता है. It is mainly telling about the second coming of the Lord. और वो विशेष रूप से परमेश्वर के यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में हमें बताता है. We can read in 1 Thessalonians 5 regarding the day of the Lord. और हम जो पहला थिस्सलुनीकियों का पुस्तक और उसके 5वें अध्याय में इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं. So verse 2, for you yourself know perfectly that the day of the Lord so come as a thief in the night. Exactly what Peter tells here, Paul is also telling. और जिस प्रकार पतरस ने बताया वैसे ही पहला थिस्सलुनीकियों का 5वां अध्याय का दूसरे वचन में पौलुस कहते हैं कि क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है. So he's coming like a thief, but Jesus is not a thief because he's going to take only his own, those who are eagerly waiting for him. और यीशु मसीह जो है एक चोर तो नहीं है लेकिन वो चोर के समान आने वाले हैं और वो सिर्फ अपने जो हैं सिर्फ उनको लेके जाने वाला है. We can see in 1 Thessalonians 5:3, when they say peace and safety, then sudden destruction comes upon them as labor pains upon the pregnant woman, and they shall not escape. और तीसरा वचन
पहला थिस्सलुनीकियों का 5वां अध्याय और उसका 3रा वचन, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ है नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। इस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। And in verse 4, he's telling that we are not of darkness. Darkness means uh, it's not for those people who are living in sin. और चौथा वचन, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। अंधकार का मतलब ये है कि जो पाप में जी रहे हैं। So he's telling in verse 5, you are all sons of light and sons of the day. You are not of night nor of darkness. और 5वां वचन में वो कहते हैं, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। So, what is the meaning that we should be sons of the light and sons of the day? That means we should be uh, living cleansed by the blood of Jesus with our conscience clear. और ज्योति के संतान का मतलब क्या है? ज्योति के संतान का मतलब ये है कि हम जो है, हमारे पाप जो हैं यीशु मसीह के लहू से धोया गया है, और जो एक बहुत ही शुद्ध विवेक से हम अपना जीवन जीते हैं। And in verse 6, he says, let us not sleep as others do, but let us watch and be sober. और 6वें वचन में वो कहते हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। So think of a person who is sleeping and he's seeing a dream. He's in another world altogether. जब कोई सोता है और सपने देखता है, तो उस व्यक्ति के बारे में जब हम सोचेंगे, वो तो एक दूसरे ही जो संसार में वो जी रहा होता है। So we should not be like that. We should not live a life where, like in a sleep, in a dream, we are living for the things of the world. It's written we have to be alert, we have to be sober and watchful. और इसीलिए कहा गया है कि हमें जो है सोते नहीं रहना है और सपने देखते हुए नहीं रहना है, लेकिन हमें जागते और सावधान रहना चाहिए। In 2 Thessalonians chapter 2 also, it's describing about the day of the Lord. We are not turning to that now. दूसरा थिस्सलुनीकियों का दूसरे अध्याय में भी प्रभु के दूसरे आगमन के बारे में बताया गया है, लेकिन आज हम उस का मनन नहीं करेंगे। Now, when we turn back to 2 Peter chapter 3 verse 10, it's written that the earth and the works that are in it will be burned up. और जब हम वापस दूसरा पत्रस 3रा अध्याय उसका 10वां वचन में जाएंगे, तो वहां बताया गया है कि जो भी संसार में जो भी वस्तुएं हैं और जो आकाश है, वो सब पिघल कर जो है खत्म हो जाएगी। Elements will melt with fervent heat. और बहुत ही तप्त होकर जो भी तत्व हैं, वो सब पिघल जाएंगे। Perhaps it can be referring to some atomic or nuclear explosion or something like that. और ये जो है ऐसे एक जो है परमाणु बम के बारे में बता रहा होगा। Out of it, God is going to create a new earth and a new heaven. और इसमें से परमेश्वर जो है एक नया संसार, नया पृथ्वी और नया आकाश बनाएगा। We can see this. Peter is telling about the present earth is reserved for fire. He's telling that in verse 7, verse 10, and also in verse 12. और हम देखते हैं कि पतरस जो है 7वें वचन में and which verse, 7? Verse 7, हाँ, verse 10, and verse 12. और 7वें और 10वें और 12वें वचन में वो कहते हैं कि जो वर्तमान काल के जो आकाश और पृथ्वी है, वो जो है जलने के लिए
या नाश होने के लिए रखे गए हैं। So the fact that it is repeated 3 times, it is a exhortation to us that this is a certainty, and it certainly is going to happen like that. और 3 बार दोहराया गया है, इसका मतलब ये है कि ये निश्चय रूप से ये पूरा होगा, ऐसा ही होगा। And now in verse 11, therefore, since all these things will be dissolved, what manner of persons ought you to be in holy conduct and godliness? और 11वां वचन, जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। The primary purpose of prophetic teaching is not to satisfy our curiosity. जो प्राथमिक जो उद्देश्य है हमारे जो भविष्यवाणी जो की जाती है, वो हमारी जो जिज्ञासा है उसे पूरा करने के लिए नहीं, But the main purpose is to motivate us to change our lifestyle. और वो इसीलिए जो है भविष्यवाणी दी जाती है कि हम उसके द्वारा उत्तेजित हो और एक पवित्र जीवन जिए। Rather than working for what is ultimately going to be destroyed, we should work for those things which are going to remain eternal. तो हमें जो है, जब हम इस दुनिया में जी रहे हैं, तो हमें इस दुनिया के जो तात्कालिक चीजें हैं उनके लिए नहीं, लेकिन जो अनंत काल तक जो बातें रहेगी उनके लिए हमें तैयार होना है। So it's written here that we have to live in holy conduct, which means hating sin and totally devoted to God, and in godliness, which is God likeness, or to our desire should be to be like Jesus Christ. That should be our primary goal in Christian life. और पवित्र चाल चलन का मतलब ये है कि हम पाप से दूर रहें और अपने आप को शुद्ध रखें और पूरे भक्ति में प्रभु के और हमारा पूरा जो दिल है, मन है, वो प्रभु के और पूरे भक्ति से रहें और प्रभु से प्रेम करें। We can see in verse 12, looking for and hastening the coming of the Lord, because of which heavens will be dissolved, being on fire, and elements will melt with fervent heat. और 12वां वचन, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोड़ना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। So here Peter is telling that we should be looking for that day, the second coming of the Lord. और यहाँ पतरस कह रहे हैं कि हमें उस दिन के और बाट जोतना चाहिए कि कब प्रभु। It is written in Philippians 3:20 that our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. और फिलिपियों के 3 अध्याय और उसका 20वां वचन में ऐसे लिखा है, फिलिपियों 3:20, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह कि वहां से आने की बाट जोड़ रहे हैं। And in Hebrews 9:28 is written, Christ is coming for those who eagerly wait for him. It's written, I'll read that verse. So Christ offered once to bear the sins of many. To those who eagerly wait for him, he will appear a second time apart from sin for salvation. और इब्रानियों का 9वां अध्याय और उसका 28 वचन, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा।
And then another amazing exhortation we can see. It's written here, we have to hasten the coming of the Lord. और एक बहुत ही अद्भुत बात जो कही गई है वो है कि हमें जो है किस तरह प्रभु के आगमन को जल्दी कराना है. So, can we really quicken the coming of the Lord? That's what is written here. We can quicken or hasten the coming of the Lord. तो हम जो है प्रभु के जल्द आने के लिए हम कुछ कर सकते हैं, यत्न कर सकते हैं. How can we hasten or quicken the coming of the Lord? तो कैसे हम प्रभु के आगमन को जल्द होने के लिए हम क्या कर सकते हैं? First of all, by living in daily repentance, so that we are all the time ready to meet the Lord whenever He comes. तो वो जो है हमारे जो मन जो है का मन फिराव करके हम रोज अपना दैनिक जीवन जिए और पश्चाताप के साथ जिए. इस तरह से हम प्रभु को हम जल्द आने के लिए हम यत्न कर सकते हैं. Secondly, by leading others to repentance. और दूसरी बात ये है कि हम दूसरों को भी मन फिराव के ओर ले आए. It can be our relatives, it can be somebody in the church. By leading them to repentance, we can hasten the coming of the Lord. वो हमारे परिवार के जन हो सकते हैं या कलीसिया में कोई हो सकता है. जब हम उनको प्रभु में लाएंगे तो हम प्रभु का जो आगमन है उसको हम जल्द होने के लिए हम यत्न कर रहे हैं. Thirdly, by prayer, we can hasten the coming of the Lord. और तीसरी बात है हम प्रार्थना के द्वारा भी प्रभु का आगमन को जल्द कर सकते हैं. We can pray for those for whom God is giving burden, so that they will also be ready for the coming of the Lord. तो जिनके लिए प्रभु ने हमारे दिल में एक भार दिया, बोझ दिया है, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करके ऐसे हम प्रभु की आगमन को जल्द करा सकते हैं. And also by holy living and godliness and keeping a good conscience, we can hasten the coming of the Lord. और हमारे पवित्र चाल चलन और भक्ति में जीवन जीने से और एक शुद्ध विवेक रखकर हम प्रभु का आगमन को जल्द कर सकते हैं. And in verse 13, we can see, nevertheless, we according to his promise look for a new heaven and new earth in which righteousness dwells. और 13वां वचन, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी. We are living in an age where corruption and injustice and all sorts of evil is just increasing. और हम ऐसे एक समय में जी रहे हैं जहां भ्रष्टाचार और अन्याय और हर प्रकार की दुष्टता जो है इस दुनिया में बढ़ रही है. We can see everywhere, in every area we can see corruption and evil. Men are becoming more and more evil. और हर एक जो है जीवन के हर एक मोड़ में हम देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और दुष्टता भी बहुत ही मनुष्यों के बीच में बहुत बढ़ रही है. Don't you think it's so exciting to really see that Jesus is going to come and establish a new heaven and a new earth? तो क्या ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात नहीं होनी चाहिए कि यीशु मसीह आएगा और एक नया जो है पृथ्वी और नया जो आकाश है उसे वो स्थापित करेंगे. You know, this about this new heaven and new earth, you can see promises even in the Old Testament. I want to show you two verses. और दो ऐसे वचनों को मैं दिखाना चाहता हूँ जो पुराने नियम में भी जो नए आकाश और नई पृथ्वी के बारे में लिखा है. मैं दो ऐसे वचन बांटना चाहता हूँ. We can see that in Isaiah 65:17. वो है यशाया का 65:17. 65 का 17 वचन. For behold, I will create new heavens and new earth, and the former shall not remember or
come to mind. यशाया का 65 का 17 वचन, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण ना रहेगी और सोच विचार में भी ना आएंगी. And in Isaiah 66:22, we can see another promise concerning in the Old Testament concerning new heavens and new earth. और एक और वचन हम यशाया के 67 अध्याय में देख सकते हैं, जो नए आकाश और नई पृथ्वी के बारे में हमें बताती है. For as the new heavens and new earth which I will make shall remain before me, says the Lord, so shall your descendants and your name remain. Which verse, brother? Isaiah 66 verse 22. यशाया 67 का 22वां वचन, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सम्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा. यहोवा की यही वाणी है. We can see that about new heavens and new earth in Revelations 21 verse 1 also. I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away. Also there was no sea. और प्रकाशित वाक्य 21 का पहला वचन में भी हम नए आकाश और नई पृथ्वी के बारे में लिखा है. 21 प्रकाशित वाक्य 21 का, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा. And in same chapter verse 7 is written, he who overcomes shall inherit all things, and I'll be his God and he shall be my son. और प्रकाशित वाक्य 21 का 7वां वचन भी, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा. So we can see that God is going to establish his kingdom on this earth. He's going to rule on this earth for 1000 years. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है अपना राज्य का जो है स्थापना वो करेंगे इस पृथ्वी पर, और 1000 साल तक वो राज करेंगे. We can see such promises even in the book of Daniel. और ये जो वायदे हैं वे हम जो है दानियल के पुस्तक में भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं. We can see that in Daniel chapter 2, दानियल का दूसरा he's telling about uh, the dream that Nebuchadnezzar saw and how Daniel is interpreting the dream. और हम देखते हैं कि दानियल के दूसरे अध्याय में जो सपना जो राजा नबूकदनेस्सर ने देखा और उसका वो परिभाषा कैसे वो करता है. And he saw a great image, a great statue. The head is made of gold, which is a reference to the Babylonian Empire at that time. और वहाँ जो है दानियल कहते हैं कि राजा ने एक बहुत बड़ी जो है मूर्ति देखी और उसका सर जो है सोने का बना हुआ है. That is a reference to the Babylonian Empire. वो जो है बाबेल का जो राज्य है उसको दर्शाता है. The chest and the arm is made of silver, which is a reference to the Medo-Persian Empire. और जो उसका छाती है और कंधा है वो सोने चांदी का बना हुआ है. वो मीदो पर्सिया जो राज्य है उसको दर्शाता है. And the belly and the thigh of bronze, which is a reference to Greece Empire. और जो उसका पेट का भाग है वो जो है ब्रास या तांबे का बना है और वो यूनानी राज्य को दर्शाता है. And the legs of iron, which is a reference to Roman Empire. और जो पैर है वो लोहे के बने हैं और वो जो है रोमियों का जो राज्य है उसको दर्शाता है.
and the feet partly of iron and partly of clay. और जो उसका अ, पैर है, तो उसका feet हाँ, पैर जो है वो आधा मिट्टी और आधा जो लोहे का बना हुआ है. So it's something like, imagine you're viewing a series of mountains. So Daniel is viewing these all these kingdoms for the future days. तो दानियल जो है, ऐसे बहुत सारे जो राज्य एक के बाद एक आने वाला है, उसको वो देख रहा है. You know, we are living in a period called last days, which is a mystery period. और हम आज जो जी रहे हैं वो जो है अ, अंत के दिन कहलाए जाते हैं, और वो जो है बहुत ही एक छिपी हुई बात है. And then he saw a stone which was cut out without hands, which struck this image and shattered it. और फिर उन्होंने देखा कि एक पत्थर का बना हुआ गोला है, वो आता है और वो इस मूर्ति से टकराता है और चूर चूर कर देता है उस मूर्ति को. And we can see the description of that, we can see in Daniel chapter 2, verse 44. In the days of those kings, God of heaven will set up a kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to the other people. It shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. So that's the kingdom that we are waiting for, the new heavens and the new earth. और हम इसके बारे में जो है दानिएल का दूसरा अध्याय और उसके 44 वचन में हम देख सकते हैं कि वहां लिखा हुआ है, उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा, और ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा. Now we can come back to 2 Peter chapter 3, verse 14. Therefore, beloved, looking forward to these things, be diligent to be found by him in peace and without spot and blameless. और अभी हम वापस आते हैं दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय और उसका 14 वचन. इसीलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरे. So please remember that God want us to be found in peace all the time. और हम ये याद रखें कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब जो हैं हमेशा शांति में रहे. The moment peace goes, we can say the referee has blown the whistle. We have to set some matter right. तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम अशांति में पाए जाते हैं, तो ऐसा है जैसे खेल में जो रेफरी है, जब कुछ गलत होता है तो वो विसल बजाता है, वैसे ही हम में कुछ गलती हो गई है, इसीलिए हम अशांति में आ गए हैं. And we have to be spotless and blameless. और इसीलिए हमें निष्कलंक और निर्दोष रहना है. If you read in 1 Peter 1:19, spotless and blameless is the description which is given to Jesus Christ. And we have to be like that. और अगर हम पहला पत्रस पहला अध्याय और उसका 19वें वचन को पढ़ेंगे, तो यीशु मसीह के बारे में कहा गया है कि वह निर्दोष और निष्कलंक मेमना है. तो हमारी ओर से भी यही परमेश्वर की इच्छा है कि हम भी निर्दोष और निष्कलंक रहें. Now we can see in the next verse, verse 15, and consider that the long suffering of our Lord is salvation, as also our beloved brother Paul, according to the wisdom given to him, has written to you. Verse 16, as also in all his epistles, speaking in them of those things in which are
some things hard to understand, which untaught and unstable people twist to their own distraction, as they also do the rest of the scriptures. 15 और 16वां वचन, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपनी ही नाश का कारण बनाते हैं. So Peter is equating the letters of Paul with the rest of the scriptures. और यहाँ हम देखते हैं कि प्रेरित पत्रस जो हैं, पौलुस के पत्रियों को परमेश्वर के जो बाकी जो वचन है, जो पवित्र शास्त्र है, उसके साथ उसकी तुलना करते हैं. Peter considered Paul's writing to be the word of God. और पत्रस ने भी पौलुस के लेख को परमेश्वर का वचन समझा. And he's telling that there are certain things which are hard to understand, which some people are twisting those words for their own distraction. और यहाँ वो कहते हैं कि कुछ बातें जो पौलुस ने लिखी हैं वो ऐसी है जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं. So just take for example the matter of justification by faith, which Paul is describing in Romans chapter 5. और हम इस बारे में सोचे जो प्रेरित पौलुस ने रोमियो के 5वें अध्याय में समझाया है, जो है विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराना. And when we really come to God, even if we are head to foot full of evil, when we honestly come to God and we put faith in Jesus Christ, He clothes us with His righteousness. जब हम चाहे हम जितने भी जो है अपवित्र हैं और जितने ही हम गंदगी में हम अपना जीवन जी रहे हैं, अगर हम सच्चाई से परमेश्वर के पास आते हैं और मन फिराते हैं, तो वो हमें अपने ही धार्मिकता से हमें धार्मिकता को हमें धारण करने को वो देते हैं. And he says in that chapter that where sin reigned in death, grace can also reign through righteousness to eternal life. और उसी अध्याय में वो कहते हैं कि जहाँ की पाप ने राज्य किया और मृत्यु ले आया, वैसे ही धार्मिकता इस प्रकार राज्य करेगा कि वो अनंत जीवन हमें देगा. Paul himself says in that next chapter that does that mean that we have to continue in sin that grace can abound? लेकिन वो 6वें रोमियो के 6वें अध्याय में इसीलिए ये कहते हैं, तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह हमें मिलती रहे? Paul himself answers, may it never be. और फिर वो खुद उसका उत्तर देते हैं और कहते हैं कदापि नहीं. There are some people who twist the word of God to say that let's continue sinning, grace will abound and Jesus will make us justified. कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो परमेश्वर के वचन को खींच तान कर अपने ही जो फायदे के लिए वो कहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमें मिलेगा, इसलिए हम ऐसे ही पाप में जीते रहें. If a person loves sin and if a person is living in sin, genuine repentance has not come in that person's life. अगर कोई व्यक्ति पाप में जी रहा है और उसको पाप से प्रेम है, तो इसका मतलब ये है कि उसने सच्चे रूप से मन नहीं फिराया है. We also have to remember that Peter is praising Paul
But we have to remember that there was a time in which Paul uh, rebuked Peter for one particular matter. और यहाँ हम देखते हैं कि पतरस जो हैं प्रेरित पौलुस की जो है प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि एक ऐसा अवसर भी था जब प्रेरित पौलुस ने पतरस को ताड़ना भी दी। We can see that incident in Galatians chapter 2. और उस घटना को हम गलातियों का दूसरे अध्याय में पढ़ सकते हैं। Here, Peter had come to Antioch, और हम देखते हैं कि पतरस जो है अंतियोक में आए थे and he was eating food with Gentiles. और वो जो है जो अन्य जाति है उनके साथ खाना खा रहे थे। But when some people came from Jerusalem, who came from James, now और he separated himself from the Gentiles and he began to be aloof from them. और जो उनके साथ वो भोजन कर रहे थे, जब याकूब के ओर से कुछ लोग वहां आए, तो जो वो अन्य जातियों के साथ खा रहा था उसने उसको छोड़ दिया और खाना खाना छोड़ दिया। And in chapter 2, verse 13 is written, rest of the Jews also played hypocrisy with Peter. और दूसरे गलातियों दूसरे के 13वें वचन में कहा गया है कि उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहाँ तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। We can see in the following verses that Paul saw that and he strongly, publicly rebuked Peter. और हम देखते हैं कि जब पौलुस ने ये देखा कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने एक सबके सामने जो है पतरस को ताड़ना दिया। But when we come to 2 Peter chapter 3, we can see that Peter is not holding any kind of grudge against Paul. He is having a wonderful spirit and wonderful love towards Paul. और दूसरा पतरस तीसरे अध्याय में जब हम आते हैं तो हम एक बहुत ही सुंदर बात देख सकते हैं, और वो ये है कि पतरस ने पौलुस के प्रति अपने दिल में कड़वाहट नहीं रखी और उसके लिए उसके दिल में सच्चाई से प्रेम था। What will happen if somebody rebuked us publicly before others? And not an ordinary brother. Peter was the apostle. He was the elder of the main elder in the Jerusalem church. क्या होगा अगर कोई हमें जो है सबके सामने कलीसिया में हमें ताड़ना दे? और बात ये नहीं थी कि पतरस एक साधारण एक विश्वासी है, वो यरूशलेम के जो कलीसिया हैं उनके मुख्य जो है बुजुर्ग थे। And at that time, Paul was a junior person. और जो पौलुस हैं वो एक कलीसिया में एक छोटा सा व्यक्ति था। But even though this junior person, junior brother, rebuked him publicly, he never took any hurt or any bad feeling in his heart. और जो है पौलुस ने ऐसे उनको ताड़ना दिया सबके सामने, फिर भी हम देखते हैं कि प्रेरित पतरस ने अपने दिल में कुछ भी नहीं रखा, उस दिल को एकदम साफ रखा। Not only that he had any bad feelings, but he is in fact praising Paul and saying praiseworthy words about Paul. और हम देखते हैं कि उन्होंने अपने दिल में कुछ बुरे विचार नहीं रखे, लेकिन उसके बजाय हम देखते हैं कि वो जो पौलुस हैं उनका सबके सामने वो प्रशंसा कर रहे हैं। So that is a wonderful example to follow. और ये हमारे लिए एक बहुत ही अद्भुत जो उदाहरण है जिसका पीछा हम कर सकते हैं। Now we can see verse 17 and 18. You therefore, beloved, since you know this beforehand, beware lest you
also fall from your own steadfastness, being led away with the error of wicked, but grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. To him be glory both now and forever. Amen. 17 और 18 वचन। इसीलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दो, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगान युग होती रहे। आमीन। See, we have to remember this word endurance or steadfastness. We have to remember that word continually in our Christian life. और एक ये शब्द जो है स्थिरता और दृढ़ता, इसको हमें हमेशा अपने मसीही जीवन में याद रखना बहुत जरूरी है। Sometimes we may fall, sometimes some battle we may lose, but we have to get up and continue fighting. ऐसा हो सकता है कि कभी हम गिर जाए और लड़ते लड़ते हम गिर जाते हैं, लेकिन हमें फिर से उठकर उसी रास्ते पर हमें आगे बढ़ना है। That is the meaning of endurance or steadfastness. और यही है सहना या धीरज बनाए रखने का मतलब। We are not to get discouraged and live in condemnation, but we have to remove condemnation, discouragement, but keep on fighting in our Christian life. और हमें जो है निरुत्साह या निराश नहीं होना चाहिए, और हमें उठकर फिर से धीरज से हमें जो है आगे बढ़ना चाहिए। Just like a small child who is learning to walk, the child may fall many times, but it is steadfastly trying to learn to walk. और जैसे कि छोटा बच्चा जो है, बालक जो है, जब वो चलने को सीख रहा है तो वो बार बार गिरता रहता है, लेकिन वो उधर ही बैठा नहीं रहता है, वो उठ के फिर से कोशिश करता है और बार बार वो अ, कोशिश करता ही रहता है, और वो हार नहीं मानता है, और वो जब तक वो सीधा चल ना पाए। And we can see another amazing exhortation here: grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. और एक और ऐसे बहुत ही अ, अनुग्रह देने वाला बात हम देख सकते हैं, और वो है हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। How do we grow in grace? हम जो है कैसे अनुग्रह में बढ़ सकते हैं? Grace is God's help, जो which He अनुग्रह wants to give us in time of need, in time of our temptation. अनुग्रह एक ऐसा मदद है जो परमेश्वर हमें देते हैं जब हम अ, किसी भी आवश्यकता की जगह में होते हैं। And it is the most valuable thing in our Christian spiritual life. और हमारी जो आत्मिक जीवन है उसमें सबसे कीमती बात वो है। We grow in grace by asking for grace, as is written in Hebrews 4:16. Let us boldly come to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. और जिस प्रकार इब्रानियों का 4था अध्याय उसके 16वें वचन में कहा गया है कैसे हम अनुग्रह पा सकते हैं, वहाँ लिखा है कि इसीलिए आओ हमें अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांधकर चले, कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। And we we can grow in grace by remaining continuously humble in our life. और हम जो है अ, अनुग्रह में बढ़ सकते हैं जब हम हमेशा नम्र और दीन रहेंगे। See, grace is God's hand extended towards us.
और अनुग्रह जो है वो परमेश्वर का जो महान हाथ है वो हमारे और बड़ा हुआ हमारे और वो जब हमारी सहायता के लिए वो बढ़ाते हैं तो उसी को अनुग्रह कहते हैं। Faith is our hand extending to Him and holding on to His hand. और विश्वास वो है कि हम अपने हाथ को उस परमेश्वर के हाथ की ओर बढ़ाएं And He can lift us from any pit, any sin. और वो हमें किसी भी कीचड़ से किसी भी पाप से हमें उठा सकता है। Just think of this word in Isaiah 53:1. I think all of you know that verse. Who has believed our report? To whom has the arm of the Lord been revealed? और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब इस वचन को जानते हैं जो है अशाया का 53 का पहला वचन, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुज बल किस पर प्रकट हुआ। Please remember, His mighty hand is extended towards each one of us. हमें याद रखना चाहिए कि यहोवा का भुज बल जो है हमारे और उन्होंने बढ़ाया है। And if we extend our hand by faith, He will hold on to us and He's ready to lift us from any pit, any sin. और अगर हम विश्वास के साथ अपना हाथ परमेश्वर के भुज बल के और हम बढ़ाएंगे तो वो अ, इसके वो हमें जो है किसी भी कीचड़ से किसी भी पाप से हमें खींच कर हमें बाहर निकाल सकते हैं। And it's also written we have to grow in the knowledge of God, that is, grow in intimacy with God. और दूसरी बात जो 18 वचन में कही गई है वो है यीशु मसीह के पहचान में बढ़ते जाओ, तो इसका मतलब जो हमारा जो घनिष्ठ संबंध है उनके साथ वो बढ़ता जाए। Just like for Jesus, the most valuable thing was the fellowship with the Father. Our most valuable thing should be that intimacy and fellowship with Jesus Christ and with God the Father. जिस प्रकार यीशु मसीह के लिए सबसे कीमती बात जो है परमेश्वर के साथ वो जो घनिष्ठ संबंध था उनका वो था, वैसे ही हमारे जीवन में भी जो है हमारे लिए परमेश्वर और यीशु मसीह के साथ जो घनिष्ठ संबंध है उसे बनाए रखना ही हमारे लिए सबसे कीमती होना चाहिए। It is this fellowship and this intimacy which will prevent us from sin, which will make that desire in our heart, Lord, I don't want to hurt you in any way through my life. और यही जो घनिष्ठ संबंध और संगति है वही हमें पाप से दूर रखेगा और हम हमारा जो ऐसा हृदय की इच्छा होगी कि हम कभी पाप में भाग नहीं सके। So we have come to the end of this chapter, end of chapter 3. Thank you, sister, for wonderful translation. अभी हम जो है इस अध्याय के अंत में पहुंच गए हैं।